Hello students, I am Kumar going to discuss part 12 of chapter 1 electric charges and field of class 12, which is assertion region questions MCQs. This video is also helpful for the students which are preparing for IIT JEE mains and AIMS NEET medical entrances. Now we have to start this video. Assertion region questions MCQs. Select the correct answer to the following questions out of the options. There are 5 options given. Usually 4 options are given in the examinations, but sometimes option E, that is 5 options are given. Option A is if both assertion, that is a statement which is abbreviated as A, and region R are true, and R is the correct explanation of A. B, if both A and R, that is assertion and region, are true, but R is not the correct explanation of A. C is if A is true but R is false. And D, if assertion is false but region is true. And sometimes option E is also given if both assertion A and region are false. दोनों assertion and region false हो, ये भी ऑप्शन कभी कभी एग्जामिनेशंस में दिया जाता है. और इस ढंग के क्वेश्चंस assertion region क्वेश्चंस MCQs ये CBSE 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस के न्यू पैटर्न में तथा IIT JEE एडवांस तथा एम्स मेडिकल के क्वेश्चंस पेपर्स में भी शामिल होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं. नाउ क्वेश्चन 1 इज assertion A, when a body acquires negative charge its mass decreases, and region are a body acquires negative charge when it loses electrons. अब इसमें इस क्वेश्चन में assertion and region दोनों रॉन्ग हैं. बोथ assertion and region are wrong in this question given, because when a body acquires negative charge its mass increases, not decreases, because electrons having slight mass, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So when a body acquires negative charge, it acquires electrons. It acquires electrons. So mass of that body is slightly increases, not decreases. So assertion is wrong. And region is a body acquires negative charge when it loses electrons. ये भी रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है, इसलिए कि कोई बॉडी जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उस पर बढ़ जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजेज. सो ए बॉडी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज व्हेन इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन जब बॉडी लूज करता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज. सो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, नॉट नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज. देयरफॉर region R is also wrong. So out of 5 options, option E is correct. यहाँ पर ऑप्शन E करेक्ट है. अगर ऑप्शन को कलर करने के लिए दिया जाए तो पूरे सर्किल को कलर करेंगे, अगर OMR शीट पर ऐसा प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है तो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
assertion is mass of positively charged body slightly increases. Reason is R, the body is charged because of transfer of electrons. यहाँ रीजन सही लग रहा है. द बॉडी इज चार्ज्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है. रीजन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बिकॉज बॉडी इज चार्ज्ड, वी नो बॉडी इज चार्ज्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर थ्योरी ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी ऑफ चार्ज से ये body is charged because of transfer of electrons. So reason is correct. Now assertion is mass of positively charged body slightly increases. A positively charged body loses its electrons. So its mass decreases, not increases. कोई बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वह इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन पर का मास वेरी स्मॉल मास होता है, लेकिन मास तो होता है. तो बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज इन दैट केस. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होगा तो उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास घटेगा बढ़ने के बजाय. सो mass of positively charged body slightly decreases, not increases. So assertion is wrong. Therefore the correct option is, if assertion is false, D. If assertion A is false but R is true, so option D is true. Option D is correct in this question, question number 2. So option D is correct. Now assertion reason, question number 3. Assertion A is, when we rub a glass rod with silk, the rod gets positively charged and the silk gets negatively charged. Reason are, on rubbing electrons from silk cloth move to the glass rod. इस क्वेश्चन में assertion दिया है स्टेटमेंट, दैट इज कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाता है तो रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द सिल्क गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड. सो असर्शन इज करेक्ट. देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क व्हेन वी रब ए ग्लास रॉड विथ सिल्क. द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिल्क टू ग्लास रॉड. सो असर्शन इज स्टेटमेंट इज करेक्ट. But reason is wrong, because on rubbing electrons from silk cloth move to the glass rod. So electrons on rubbing electrons move from glass rod to silk cloth, not from silk cloth to the glass rod. So reason is wrong, but assertion is correct. अब सभी ऑप्शंस में 5 ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, A B C D E. अब इसमें स्टेटमेंट असर्शन और स्टेटमेंट तो करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है. तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट. ऑप्शन सी में क्या है, क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन सी इज, इफ़ स्टेटमेंट और असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Assertion A is, the charge on a body can be increased or decreased in terms of electronic charge, small e, which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Reason R is, quantization of charge means that the charge on a body is the integral multiple of electronic charge, small e. Options are A, B, C, D, E. In this question, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion A. Quantization of charge, because in quantization of charge, electrons are transferred from one body into another body in integral form. This is the cause of quantization of charge. So charge on a body is the integral multiple of electronic charge.
from quantization of charge, we have Q is equal to Ne. Therefore, the charge on a body can be increased or decreased in terms of electronic charge small e, because from quantization of charge, total charge on a body is integral multiple of electronic charge small e. Q is equal to Ne. So, in this question, option A is correct. Both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion A. Option A is correct. Now question number 5. Assertion is annihilation of electron and positron is an example of decay of charges. Reason is in the process of annihilation and electron and a positron. Electron इस पर चार्ज E माइनस होता है, positron पर चार्ज E प्लस, combine to give to gamma rays. तो in the process of annihilation of matter, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन E माइनस एंड पोजिट्रॉन E प्लस इसका चार्ज होता है, दोनों कंबाइन होकर के उस मैटर का एनिहिलेशन करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और इस प्रोसेस में दो गामा रेडिएशंस प्रोड्यूस होता है, दैट इज E माइनस प्लस E प्लस रिजल्टेड टू E माइनस प्लस E प्लस, ये एनिहिलेशन ऑफ मैटर एंड two gamma radiations are produced. In this process, net charge on electron and positron is 0, and gamma radiation having also no charge. गामा रेडिएशन पर भी कोई चार्ज नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज उतना ही पोजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों का चार्ज 0, और फिर गामा प्लस गामा रेडिएशन का भी चार्ज 0. तो ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है. एनिहिलेशन ऑफ मैटर इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. It is not based on it is not an example of decay of charge. It is an example of charge conservation. So assertion A is wrong, but reason R is correct, because in the process of annihilation of matter, an electron and a positron combine to give to gamma rays, जिसका रिएक्शन भी हमने इसको यहाँ लिखा है. So assertion is wrong, but reason is correct. So option D is correct in this case, in this question, because yes, if assertion is wrong but reason is true, ये ऑप्शन डी में दिया है क्वेश्चन में. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ assertion reason question number 6. Assertion is attraction precedes induction. Reason are a charged body attracts an uncharged body because of development of opposite charge on the uncharged body. In this question, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion or a statement A. इंडक्शन के केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग बाय इंडक्शन के केस में, जब किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के नज़दीक ले जाया जाता है लेकिन टच नहीं कराया जाता है, तो अनचार्ज बॉडी पर अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है, और इसके कारण चार्ज बॉडी और जिस अनचार्ज बॉडी पर अब अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हुआ उसके बीच में अट्रैक्शन होता है. देयरफॉर अट्रैक्शन प्रीसीड्स इंडक्शन. तो इंडक्शन के कारण ही अट्रैक्शन होता है, और चार्ज बॉडी, इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू an uncharged body, opposite charges are induced on the nearer face of the uncharged body to that of the charged body, and between two opposite charges attraction force is realized, or attraction force acts. So both assertion and reason is true, and reason is the correct explanation of assertion A. यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया रीजन एसर्शन को स्टेटमेंट को करेक्टली ठीक ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है, सही ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है.
So option A is, out of 5 options A, B, C, D and E given in the question, option A is correct. Now question 7. Assertion A is, in case of induction, opposite charges is induced. Reason R, actual exchange of charges do not take place in the induction. Options are A, B, C, D and E. In this question, both assertion and reason are correct, and reason R gives the correct explanation of the assertion A or a statement. इंडक्शन के केस में, चार्जिंग बाय इंडक्शन के केस में, जिसको हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखा था, डिस्कस किया था, अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस होता है जब किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के नज़दीक ले जाते हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं, टच नहीं कराते हैं, तो अनचार्ज बॉडी के नियरर फेस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस्ड होता है. दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन. लेकिन इंडक्शन के केस में चार्ज का दोनों बॉडीज के बीच एक्चुअल ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाता है. एक्चुअल ट्रांसफ़र तब होता है व्हेन बोथ बॉडीज एक दूसरे के टच में हो, फिजिकली टच में हो. लेकिन इंडक्शन के केस में दोनों बॉडीज एक दूसरे के नज़दीक ज़रूर होते हैं, लेकिन फिजिकली टच में नहीं होते हैं. So actual transfer exchange of charges will only take place when two bodies are in physically contact. But in case of induction, both bodies are not in physical contact, although they are, that is, charged body is brought close to the uncharged body but not in contact. So option A is correct in this question. Now question number 8. Assertion A is, it is possible to have a charge of 2.4 into 10 to power minus 19 coulomb. Reason R is, in the process of charging, only whole electrons move from one object to another object. अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट assertion A is wrong because it is possible to have a charge of 2.4 into 10 to power minus 19 कूलम. यहाँ पर फ्रैक्शनल चार्ज 2.4 इज ए फ्रैक्शनल नंबर, ये फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होने बॉडी इज ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई. तो केवल ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब चार्ज का डिस्क्रीट नेचर ही चार्ज ही पॉसिबल होगा. फ्रैक्शनल चार्ज इज नॉट पॉसिबल. सो 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम इज नॉट पॉसिबल. 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 coulomb, 3 into 10 to power minus 19 coulomb, 4 into 10 to power minus 19 coulomb. Such charges are possible according to quantization of charge. But here is fractional charge which is not possible according to quantization of charge. यहाँ फ्रैक्शनल चार्ज दिया है प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में, जो कि पॉसिबल नहीं है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अनुसार. सो assertion A is wrong, but reason R is, in the process of charging only whole electrons move from one object to another object. तो एक बॉडी से दूसरे, इंडक्शन के केस में एक बॉडी से, चार्जिंग के केस में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफ़र होता है. इसलिए इलेक्ट्रॉन्स, उसका कोई पार्ट नॉट इट्स पार्ट इज ट्रांसफर्ड. सो इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ओनली होल इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन बॉडी टू वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. It is correct. Reason is correct. So out of 5 options A, B, C, D and E, because since assertion is wrong, so option D is correct. Assertion is wrong, but reason is true. So option D is correct in this question. Now question 9. Assertion A is, electrostatic force is conservative in nature. Reason R, electrostatic force is an inverse square law of force. In this question, both assertion and reason are correct, but
रीजन इज नॉट द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। दोनों एसर्शन तथा रीजन इस क्वेश्चन में सही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर स्वभाव में कंजर्वेटिव होता है, संरक्षी होता है हिंदी में कहें तो। और कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वह पाथ पर डिपेंड, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, वह डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पर, पोजीशन डिपेंडेंट होता है, नॉट पाथ डिपेंडेंट। बट इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो एन इन्वर्स लॉ force. From Coulomb's law, we have force is equal to K into Q1 Q2 upon R square, that is F varies as 1 by R square. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेज के बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर का, दोनों चार्जेज के बीच में डिस्टेंस अगर सपोज करते हैं R है तो उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज F varies as 1 by R square. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिस इज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, यह भी सही है, रीजन सही है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव भी है, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वर्स स्क्वायर जो लॉ होता है वो आर पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस बढ़ने के साथ फोर्स का वैल्यू घटता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन इन्वर्स स्क्वायर लॉ फोर्स इज करेक्ट, बट इन्वर्स स्क्वायर लॉ इज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन्वर्स स्क्वायर लॉ इज पाथ डिपेंडेंट, दैट इज डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और यह भी सही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव होता है नेचर, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो किसी चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जा करके पुनः फिर से अगेन इनिशियल पोजीशन तक ले जाने में जो वर्क डन होगा बाय द कंजर्वेटिव फोर्स वह जीरो होता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, बट इट इज नॉट position dependent, and reason is electrostatic force also follows inverse square law according to Coulomb's law. So both statements, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion A. So here option A is not correct, but option B is correct. ऑप्शन बी के केस में दोनों एसर्शन एंड रीजन करेक्ट होता है, बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। और ऑप्शन ए के केस में बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। सो करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन नंबर 9 इज बी। Now question number 10, assertion A is the Coulomb force is the dominant force in nature. Reason R is the Coulomb force is weaker than the gravitational force. और एक और रीजन हो सकता है इसी क्वेश्चन में, assertion तो ही रह सकता है लेकिन रीजन एक दूसरा भी हो सकता है। रीजन आर बोथ लॉज आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो इन दिस क्वेश्चन 10 assertion रीजन क्वेश्चन, assertion द Coulomb फोर्स इज द डोमिनेंट फोर्स इन नेचर। तो Coulomb फोर्स तो नेचर में डोमिनेंट प्रभावी फोर्स तो है ही, यह करेक्ट है बिल्कुल। एंड रीजन आर इज द Coulomb फोर्स इज वीकर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन Coulomb फोर्स सेकेंड जो रीजन है, Coulomb फोर्स इज वीकर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। Coulomb फोर्स इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स इन नेचर। इट इज ओनली वीकर दैन द न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बट इट इज इवन स्ट्रॉन्गर दैन द वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सो Coulomb force is not a weaker force, not weaker than the gravitational force. Gravitational force is weaker than the Coulomb force. So reason is wrong. So but assertion A is correct. So option assertion is correct, but reason is false. So option C is correct. Option C is correct. और एक दूसरा रीजन भी हो सकता है assertion सेम होते हुए भी, वह है कि both laws are same in all respects. दोनों लॉज हर तरह से समान है। तो कुछ केसेस में तो दोनों फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आइडेंटिकल हैं, जैसे कि दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दोनों कंजर्वेटिव नेचर का है।
दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं, मतलब बोथ कूलॉम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्सेस, बोथ आर कंजर्वेटिव, बट gravitational force is only of attractive nature, but Coulomb force is attractive as well as repulsive nature. So both laws are same in all respect. यह सही नहीं है. So second reason given in this question is also wrong. So in both regions assertion is same. In both regions given in question 10, both regions are wrong, but assertion is correct. So the correct option is C. Assertion is correct, but region is wrong. So option C is correct. अब इसी क्वेश्चन के साथ, इसी क्वेश्चन के डिस्कशन के इसी क्वेश्चन assertion रीजन क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, जो कि इस चैप्टर का एसर्शन चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन, जो कि CBSE 12 बोर्ड के न्यू पैटर्न में तथा IIT JEE मेंस एडवांस एग्जामिनेशन एंड नीट एम्स एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं. तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है. लेकिन इस चैप्टर का कुछ सेकंड पार्ट को भी, मतलब एसर्शन रीजन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को भी मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गॉसियन सरफेस, गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड होगा. तो इस चैप्टर का एक और पार्ट, मतलब इस चैप्टर में के एसर्शन रीजन क्वेश्चंस का, मल्टीपल क्वेश्चंस का एक और पार्ट, अगला वीडियो भी तैयार होगा, जिसमें हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है इस चैप्टर का, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का, उसको डिस्कस करेंगे. यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें. थैंक यू वेरी मच.